हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इंटरनल एनर्जी। सी हियर एवरी सब्सटेंस present in this universe is associated with the some sort of a energy, actually some sort of definite amount of energy. Okay, a substance which is present in this universe, हर कोई substance है, whether it is biotic or a non biotic, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें रहेगी, क्योंकि इन दैट सिस्टम ओनली अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर इज देयर। अगर मैटर है सो डेफिनेटली that definite amount of energy is also associated with that system, understood, or with that substance. So this energy stored in a substance is actually called its internal energy. ठीक है, internal energy क्या है? Simply in other word we can say that energy associated within the body of an object. I repeat, the energy associated within the body of an object is said to be the internal energy. ठीक है, क्योंकि हर कोई सब्सटेंस में मैटर है तो डेफिनेटली एनर्जी है। सो वॉट एवर एनर्जी होगी इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम ओनली, इज सेड टू बी द इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टूड, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ, एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू साइन। ओके, इनिशियली अर्लियर एक्चुअली इंटरनल एनर्जी आई से डिनोट किया जाता था, बट नाउ डेज इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, चलते हैं फिर इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो, वॉट एवर एनर्जी होती है इन द सिस्टम ओनली, एक्चुअली दैट एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अंडरस्टूड ना? अगर हर कोई एनर्जी है, समझ लो कि आपके पास, जस्ट आई टेक द जनरल एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ पेन. Now the pen do have some sort of a potential energy, some sort of a kinetic energy. Understood? So that internal energy is actually the combination of these two energy, kinetic as well as the potential energy. Okay, अब समझ लो कोई एक सिस्टम है जैसे कि पेन ही है। अब इनिशियल मोमेंट पे उसकी इंटरनल एनर्जी होगी U1, some sort of a work is done onto that system only, internal energy change हो गई, understood, and at the final state the internal energy remains U2. So the change in internal energy is denoted by, or it's given by delta U, and delta U is nothing but U2 minus U1. understood? जो भी एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम ओनली, वो किससे डिनोट किया जाएगा? डेल्टा यू से, एंड डेल्टा यू इज नथिंग बट U2 माइनस U1, वेयर U2 इज व्हाट? internal energy in final state, and U1 is internal energy in the initial state. Understood? U1 होगा तो internal energy in initial state, U2 that is in the final state. समझ गए? Okay, so this is all about the internal energy. One more thing that we need to remember about internal energies, it is a state function and extensive property as well. Internal energy is a state function. बच्चों याद करो state function क्या है? Okay, state function यानी the property of the system only and only depends upon the magnitude and not on the path followed to change that magnitude. Understood? The property of the system depends upon the magnitude and not depends upon the path followed to change that magnitude. That is known as a state function. यानी मैग्नीट्यूड यानी, बट ऑब्वियस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में जो जाएगी वो वैल्यू। अंडरस्टूड? सो द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डू नॉट फॉलो द पाथ टू चेंज दैट इनिशियल टू द फाइनल स्टेट इज सेड टू बी द स्टेट फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। रिमेंबर, इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? इट इज अ स्टेट फंक्शन। यानी ये भी जब चेंज होगा फ्रॉम U1 टू U2 तो एक पर्टिकुलर पाथ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जस्ट ओनली वी वांट द वैल्यू at U1 and value at final state, that is U2. okay, the value at initial state that is U1 and value at final state that is U2, but वो किस डायरेक्शन से चेंज हुआ that is not matter over here. Understood ना? So that's why it is said to be the state function. Also it is an extensive property. okay, it is an extensive property. extensive property यानी क्या? हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, extensive property and intensive property. The property depends upon quantity of matter is extensive property. Property depends or independent of quantity of matter is the intensive property. Understood? So extensive property क्या है? The property depends upon quantity of matter. जितना matter ज़्यादा उतनी उस property की magnitude ज़्यादा. So again the internal energy is a extensive property. क्योंकि अगर हमारे पास दो object है, दो system है, consider करो, we are having 1 gram CuSO4 and we are having 10 gram NaCl.
अब मैटर कौन सा ज़्यादा है, 10 ग्राम NaCl, सो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट 10 ग्राम NaCl इज मोर कंपेयर टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम CuSO4। अंडरस्टूड? सो क्वांटिटी ज़्यादा है ऑफ मैटर, सो बट ऑब्वियस इंटरनल एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। अब अगर मैटर की क्वांटिटी कम है इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, इंटरनल एनर्जी उसकी कम होगी। दैट्स वाई इट इज सेड टू बी दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? समझ गए? सो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं अगेन। सब्सटेंस associated with the definite amount of energy, that definite amount of energy is said to be internal energy, which is denoted by U. Change in internal energy is delta U, which is nothing but difference between internal energy at the final state and internal energy at the initial state. So delta U is equal to U2 minus U1. Okay, internal energy is a state function because this is a property of the system, actually do not depends upon the path followed to change the state from initial to final, but it only depends upon the magnitude of that state from initial to final. Okay, and also it is an extensive property. Okay, see here, the transfer of energy from the system change its internal energy. अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई फ्रॉम द सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम टू सराउंडिंग हो गया तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा ऑफ द सिस्टम। अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे ऊपर आ गया देन ऑल्सो देर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। I repeat, if there is a transfer of energy from system to surrounding or either surrounding to system, definitely there is a change and in internal energy of the system. वो कैसे change होगा, whether it is increase or decrease, that we'll see over here. See the first point, the energy transfer to the system by heating it or by performing work on it. ओके, द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट। अगर सिस्टम को हीट कर रहे हैं हम लोग, यानी सम सॉर्ट ऑफ अ हीट एनर्जी डू फोर्स टू गिव टू द सिस्टम ओनली, और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन दैट सिस्टम, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट। देर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अंडरस्टूड? देर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हैं? अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम है और उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर ली, स्पेशली एनर्जी ऐड कर दी, एक तो बाय हीटिंग और बाय डूइंग वर्क ऑन इट, सो डेफिनेटली देर इज ए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट दैट फाइनल स्टेट शोज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टूड? सिमिलरली अपोजिट केस होता है फॉर द इंटरनल एनर्जी ओनली, द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम बाय कूलिंग। अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम हम लोग कूल कर रहे हैं यानी क्या, हीट उसमें से निकाल रहे हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर सिस्टम, वी आर रिमूविंग द हीट ओनली। समझ रहे हैं ना? then and then the temperature will be removed, temperature will be decreases, it means we are cooling that system, और by performing work on the surrounding, या फिर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है। दो चीज़ें हैं, एक तो सिस्टम को कूल किया यानी उसमें से हीट निकाल दी, या फिर सिस्टम डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, नो, कूलिंग कर लिया मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, एंड बाय सिस्टम परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, देन ऑल्सो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ओनली, स्पेशली हीट एनर्जी। सो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी is decreases over there is a removal of internal energy from the system. Understood? तो internal energy input कब होगी into the system, जब surrounding उसके ऊपर work करेगा या फिर हम लोग उस particular system को heat करेंगे। internal energy कम कब होगी फ्रॉम द सिस्टम, जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा या फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कूल करेंगे। अंडरस्टूड? दिस टू थिंग्स ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वी ऑल्सो रिमेंबर need to remember actually the internal energy is a state function as well as extensive property. Okay guys, so आपको definition पढ़ना है एंड ये दो पॉइंट भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, हाउ दिस इंटरनल एनर्जी चेंजेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। First law of thermodynamic. Let's see the statements of first law of thermodynamic. See, the first law of thermodynamic is actually the law of conservation of energy. हमने लोअर क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स एक्चुअली फॉर दिस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो विल सी दैट फर्स्ट थिंग
ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाएगा, राइट एनी 2 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर राइट एनी 1 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यू कैन चूज एनी वन ऑफ 3 स्टेटमेंट. Let's see the first statement. First is what? The energy of the universe remain constant. First of all, first statement, the energy of the universe remains constant. इसका मतलब क्या है? The energy of the universe remain constant यानी जब energy universe बना ये, the whole universe is made, no, whatever energy is was there at that particular time जब universe बना था, but obvious universe बना था कहते हैं हम लोग जब बिग बैंग थियरी हुई, बिग बैंग थियरी से बिग बैंग हुआ तब the whole particles are spread out and energy is also spread out over there in the whole universe only, or different galaxies and different planets and galaxies बने and whole universe बना. जब universe बना तब जब energy थी, और आज की energy अगर universe की count करें, so the energy of both the time remain same for the universe only. इसका मतलब क्या है? The energy of the universe remain constant. ठीक है. अब universe में different systems है. हम पर्टिकुलर सिस्टम है, हमारे केमिकल सिस्टम है, हम अगर पेन से लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक है, वी आर हैविंग अ बैग टू कीप द नोटबुक, टेक्स्ट बुक, ऑल दीज आर सेड टू बी द सिस्टम ओनली. करेक्ट. अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम है तो उन पर्टिकुलर सिस्टम की भी कुछ एनर्जी होगी. अंडरस्टूड. सो द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. अगर सिस्टम यूनिवर्स की एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो यूनिवर्स में जो सिस्टम है उनकी भी एनर्जी कांस्टेंट ही है. अंडरस्टूड. आइसोलेटेड सिस्टम यानी अ पर्टिकुलर सिस्टम, सिंगल सिस्टम. अंडरस्टूड. आइदर अ पेन, अ टेक्स्ट बुक, और अ डिफरेंट केमिकल्स. अंडरस्टूड. सो दीज आर द आइसोलेटेड सिस्टम. सो उनकी भी एनर्जी कांस्टेंट होगी. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द फेमिलियर वन एक्चुअली. द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म. समझ रहे हैं ना? द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can be converted from one form into the another form. Heat energy to electrical energy, electrical to heat energy, electrical to wind energy, or a light energy to electrical energy. ये form of energy change होंगे, but we cannot prepare the energy. We are not having any sort of a machine where from which we can prepare the energy or we can destroy the energy. Understood? So these are the 3 statements of thermodynamic. आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, जो भी इजी लगे वो लर्न कर लो. ओके. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि तीनों के तीन, एटलीस्ट 2 प्रिपेयर कर लेना आप लोग, क्योंकि 2 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. राइट द एनी 2 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. नाउ विल गो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्चुअली है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ओके. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. उसके लिए हम लोग एक कंडीशन कंसिडर करेंगे. सपोज वी आर हैविंग अ सिस्टम. ठीक है. एक पर्टिकुलर सिस्टम है हमारे पास, समझ लो वाटर ही है. ओके. एंड क्यू अमाउंट ऑफ अ हीट इज सप्लाइड टू दैट सिस्टम. ओके. क्यू अमाउंट ऑफ अ हीट इज एब्जॉर्ब बाय दैट सिस्टम. अगर वी आर हैविंग अ वाटर एज अ सिस्टम और उसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ली, उसने, तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अंडरस्टूड ना? द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट वाटर गोइंग टू बी चेंज. करेक्ट. और ऊपर से वर्क भी हुआ वहाँ पे. अंडरस्टूड ना? वहाँ पे क्या हुआ? वर्क भी हुआ. कैसे? वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी पुट की है इनटू द सिस्टम. एनर्जी इज इनपुटेड इनटू द सिस्टम ओनली बाय द सराउंडिंग. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव वर्क. अंडरस्टूड. ओके. सो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अ सिस्टम दैट इज वाटर. उसने क्यू अमाउंट ऑफ अ हीट एब्जॉर्ब कर ली है एंड दैट्स वाई सम सॉर्ट ऑफ अ वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम. अब उसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे? देखो, सिस्टम ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ली और वर्क हुआ कुछ. करेक्ट. ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट होल कोर्स, इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो गई ना सिस्टम की. इनिशियली कुछ थी U1, डेफिनेटली हीट एब्जॉर्ब की है तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी वहाँ पे. U2 कहेंगे हम लोग एट द फाइनल स्टेट. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो देयर. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. अंडरस्टूड?
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कब हुआ वो? व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ अ हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। Q amount of a heat is absorbed and W amount of work is done on the system, and this particular equation delta U is equal to Q plus W is said to be the mathematical expression of first law of thermodynamics। उसको क्या कहेंगे? mathematical expression of first law of thermodynamics। See the equation delta U is equal to Q plus W, where delta U is an increase in internal energy of the system, or in other word we can say change in internal energy of the system। Q is heat absorbed by the system and W work done on the system। Okay, work done on the system, understood? So delta U is equal to Q plus W is the मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अंडरस्टूड? क्योंकि देखो क्यों ये कहा, क्योंकि सिस्टम ने सम सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वर्क हुआ उसके ऊपर, और ड्यूरिंग दैट कोर्स इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया ना, total internal energy of the system is changes, understood? So the change in internal energy because of heat absorbed by the system and work is done on the system, so delta U is equal to Q plus W is said to be the mathematical expression of first law of thermodynamic, understood? Okay, for infinitesimal changes, for minor changes only, this the above equation is written as du is equal to dq plus dw। okay, du is equal to dq plus dw। for smaller changes हम लोग लिख सकते हैं du is equal to dq plus dw, understood? okay, so remember the equation, mathematical expression delta u is equal to q plus w। okay, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर वेरियस प्रोसेसेस। बच्चों हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ी थी और मैंने कहा था कि ये प्रोसेस के क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और यू कैन से स्टेट वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, वो याद रखना है आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या वेरिएबल्स हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये मैंने कहा था क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, बट उस वेरिएबल को कांस्टेंट रख के कुछ चेंजेस होने वाले हैं इन द डिफरेंट इक्वेशन। लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा या फिर क्या न्यू इक्वेशन मिलेगा, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर, अंडरस्टूड? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? हियर दिस वन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, चलो तो वो अभी ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू किस तरह से चेंज होता है फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस, दैट विल सी ओवर हियर। द फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों याद करो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेट फंक्शन कांस्टेंट रखा था? डेल्टा टी, अंडरस्टूड? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, एंड एज द टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, करेक्ट? याद करो वो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो एंड दैट्स वाई डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। सो विल पुट दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू in that mathematical expression of first law of thermodynamic, that is delta u is equal to q plus w. okay, delta u is equal to see बच्चों for the isothermal process delta t equal to 0, so delta u is equal to 0, so we'll put the value of delta u that is 0 in the equation mathematical expression of first law of thermodynamics। delta u is equal to q plus w, वैल्यू है डेल्टा u की 0 डाल दिया, दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक or you can say the mathematical expression of first law of thermodynamic for the isothermal process is q is equal to minus w or w is equal to minus q। okay, now we'll see the same equation for the different process, that is adiabatic process। in the adiabatic process याद करो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? q equal to 0, correct ना? no exchange of a heat energy। if we put the value of q in the mathematical expression of first law of thermodynamic, delta u is equal to q plus w, value of q is 0, so overall equation क्या आ जाएगा? delta u is equal to w, understood? okay, now the next one is isochoric process। okay, now in the case of isochoric process कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? delta v is equal to 0, understood? volume, there is no change in volume, delta v is equal to 0, so we'll put the value over there। so delta u is equal to q plus w। पहले w की वैल्यू डाल देते हैं कि w यानी क्या एग्जैक्टली माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी, करेक्ट? डेल्टा वी की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ई एक्स टी इंटू 0, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। बच्चों वहाँ पे नीचे q के नीचे v लिखा है,
ओके इसका मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ अ हीट इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अंडरस्टूड। इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को किस तरह से पढ़ेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ अ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो v जो है स्मॉल v नीचे लिखा, दैट रिप्रेजेंटिंग द होल प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यू हैव टू रिमेंबर डेल्टा यू इज इक्वल टू QV। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग, आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट। बट देखो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट यानी डेल्टा P इक्वल टू 0। बट बच्चों जो भी हम लोग प्रोसेस कैरी करते हैं इन द लेबोरेटरी, दिस इज जनरली दैट टेक्स प्लेस इन अ ओपन लेबोरेटरी। अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो, सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और वॉट एवर अदर टाइप ऑफ प्रैक्टिकल, तो जो प्रैक्टिकल आप करोगे वो कहाँ करोगे, ओपन एटमॉस्फेयर में। ओके ओपन एटमॉस्फेयर में करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली क्या रहता है, 1 atmosphere, no? Okay, so there is no any certain criteria or no any certain method where we can keep the pressure constant. Okay, so atmospheric pressure तो रहेगा। अब atmospheric pressure तो है, बट जो भी वॉल्यूम होगा वो चेंज होता रहेगा बच्चों। जब आप टाइट्रेशन भी करते हो, सो 10 ml ऑफ सोल्यूशन पिपेट आउट करते हो, करेक्ट। उसके बाद फिर ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन ऐड करते हो, दूसरा उसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर या फिर अदर इंडिकेटर भी ऐड करते हो आप लोग। सो देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम। सो प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, एट द सेम टाइम देर इज़ नो चेंज, सॉरी देर इज़ नो we can say no method where the volume remains constant, means volume is also not constant over there, correct। अगर ये सारी वैल्यू हम लोग कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारा। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू यानी हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दैट इज माइनस पी एक्स टी इंटू डेल्टा वी, करेक्ट। अब सिंपली द होल इक्वेशन इज सेट टू बी, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। सो हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र कर लेते माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी को लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी। इन शॉर्ट पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी तो ज़ीरो ही आएगा। सो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू और ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी, अंडरस्टूड। बट इन द सिलेबस द फर्दर इक्वेशन इज नॉट देयर, सो हम लोगों ने यहीं पर तक स्टॉप करना है और यहीं तक पढ़ना है एक्चुअली, अंडरस्टूड। सो बच्चों ये सारे डेरिवेशंस है जो आपके 2 मार्क्स के लिए आएंगे इस पूरे वीडियो में। अगर आप देखो तो फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। आफ्टर दैट इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आपको कम से कम 3 में से 2 स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। देन आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आफ्टर दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द वेरियस प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस एज वेल एज फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस। ये याद रखना, ये 2 मार्क के लिए इक्वेशन हो सकता है आपको। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट वेल। थैंक यू।